coming to the assumptions of Keynesian theory, ये वैसे तो हमने कर लिया था. What are the assumptions? So I'll repeat it again कि किन basis पे जो है Keynes ने अपनी theory base की है. So he considered a short period because he considers कि long run में we all are dead, so we should look into the problems that is related to a short period, right? Then there is a closed economy, मतलब कोई अर्थव्यवस्था जो है कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रही है. देयर इज नो रिलेशन विद एनी अदर कंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, सो दैट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. लेबर, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, सो लेबर इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन का सिर्फ एक ही यहाँ पे साधन कंसिडर किया गया है शॉर्ट पीरियड में, दैट इज लेबर. सो मतलब कि रोजगार में परिवर्तन करके हम उत्पादन के स्तर में और राष्ट्रीय आय के स्तर में परिवर्तन ला सकते हैं, राइट? सो दैट इज द लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन कीन्स ने बताया दैट इक्विलिब्रियम जो होगा दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड वेयर एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस curves are in equilibrium or intersect each other, right? So there the equilibrium will be established, and it can happen also at an underemployment situation. It is not necessary as stated by the classicals कि ये सिर्फ full employment में ही होता है. नहीं, ये ऐसा नहीं होगा. ये लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन अंडर and underemployment situation. Then saving and investment function, Keynes के according saving is a function of level of income. If income rises, saving also rises. If income falls, then saving also falls. That means there is a direct and proportionate relationship between saving and income. Investment according to Keynes is a function of rate of interest as well as marginal efficiency of capital. That means if marginal the entrepreneur or the firm will compare between these two rates, marginal efficiency of capital profit rate को दिखा रहा है और जो rate of interest है वो cost of capital को दिखा रहा है. So he'll consider between this cost and profit of capital. तो अगर profit ज़्यादा है, that means marginal efficiency of capital is greater than this rate of interest, then the investors will invest more, right? If it is less than, that means MEC is less than rate of interest, that means cost is more, cost of capital is more, and profit expected from it is less, then the investor will start disinvestment, or it will lower the level of investment, right? Or it will not do the investment, right, in that case. So why will he bear the losses? So that is the reason, right? Then labor has a money illusion because Keynes says that there is a difference between the monetary wage and the real wages, right? Real wage is something which is being influenced by the level of prices. कीमत घटने से आपका जो मनी वेज है वो तो वही रहेगा कांस्टेंट, बट रियल वेज आपका बढ़ जाएगा. मतलब अब आप ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाएंगे. अगर आपकी प्राइसेस बढ़ गई तो आपका रियल वेज कम हो जाएगा. मॉनेटरी वेज कांस्टेंट रहने पे भी आपका रियल वेज कम हो जाएगा, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों के बाद आप अब कम ही वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाएंगे, राइट? सो दैट इज वेयर देयर इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वेज एंड मनी वेज. नाउ लेबर हैज अ मनी इल्यूजन, मतलब कि अगर लेबर का मॉनेटरी वेज को ना चेंज करके हम सिर्फ रियल वेजेस में चेंज कर लेते हैं बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ प्राइसेस, कीमतों में परिवर्तन करके, सो लेबर को नहीं पता चलेगा कि उसकी वेजेस एक्चुअल में घट गई हैं, जबकि मॉनेटरी वेज उतनी ही है बट एक्चुअल में रियल वेज तो वो घट गई है. सो दैट इज वेयर लेबर हैज अ मनी इल्यूजन, उसको कोई पता नहीं चला, राइट? सो कीन्स के अकॉर्डिंग रियल वेजेस नहीं घटानी चाहिए, मॉनेटरी वेजेस नहीं घटानी चाहिए, रियल वेजेस घटानी या बढ़ानी चाहिए टू increase more employment level, right? So labor has a money illusion का ये मतलब है. Then money also acts as a store of value. अब कीन्स ने बोला, क्लासिकल्स कहते थे कि money has only one single role, that is it is used as a medium of exchange only, right? मतलब लेन देन व्यापार के ही काम आता है. It has no store of value function, but Keynes ने बोला it has a store of value function. We can store it and we can earn interest on it,
राइट, वी कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट, राइट. सो मनी का दूसरा फंक्शन को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है अकॉर्डिंग टू कीन्स. देन अगेन क्लासिकल्स की तरह ही कीन्स ने भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात की है. दैट मीन्स इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दी यूनिट्स ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते जाएंगे तो रिटर्न्स आपकी डिमिनिश होती जाएगी, आउटपुट रिटर्न्स जो है वो डिमिनिश होती जाएंगी. दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की वो घटती जा रही है, राइट. देन इंटरेस्ट इज अ मॉनिटरी फिनोमिनन. क्लासिकल्स कहते थे इंटरेस्ट जो है रियल मार्केट में, गुड्स मार्केट में तय होता है बाय द वेरिएबल्स लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जबकि कीन्स का मानना है दैट इट इज अ प्योरली मॉनिटरी फिनोमिनन और ये तय होता है बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. ये तय करती हैं जहां दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे दो कर्व्स, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू कीन्स. सो इट इज अ मॉनिटरी फिनोमिनन, राइट. सो बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस he has started his theory. So Keynes के मॉडल में इनकम जो है is a function of level of employment. Now n represents the number of labor, that means employment, right. Now जो national income है is identical to national output as well, right. मतलब national income ही national output है. So income and output is the function of labor alone, जैसे क्लासिकल्स ने कहा था वही सेम यहाँ पे Keynes ने भी कहा क्योंकि शॉर्ट पीरियड की बात की है. देन जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड, राइट. मतलब नंबर ऑफ लेबर कितना एम्प्लॉय करेंगे विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड. प्रभावशाली मांग कहाँ पे है? अब प्रभावशाली मांग कहाँ होती है? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं. where there is equality between aggregate demand and aggregate supply, there the point of effective demand is established, right. So इस फ्लो चार्ट में पूरा कीन्स का थ्योरी आपको समझ आ जाएगा, राइट. अब क्योंकि कीन्स ने ये आइडेंटिटी बताई है बिटवीन द एग्रीगेट नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम एंड देन एम्प्लॉयमेंट एंड देन इफेक्टिव डिमांड, राइट. सो इफेक्टिव डिमांड तय करेगा कहाँ पे नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम या फिर नेशनल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, राइट. इफेक्टिव डिमांड. अब इफेक्टिव डिमांड दो चीजों से निर्धारित होता है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, और एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, राइट. तो ये दो जहाँ पे इक्वल होते हैं वहां पे आपका इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट होता है. सो देयर इट विल बी डिसाइडेड कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट कितना है और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है. ना क्योंकि शॉर्ट पीरियड की बात की है, सो एग्रीगेट सप्लाई विल रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, राइट. उसको कांस्टेंट एज्यूम किया गया है क्योंकि एक शॉर्ट रन की बात की है यहाँ पे थ्योरी में. सो नाउ विल सी कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में किस तरह से चेंजेस करके हम इफेक्टिव डिमांड के लेवल को बढ़ा सकते हैं और फिर इफेक्टिव डिमांड के लेवल बढ़ाने से कैसे नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है, राइट. नाउ एग्रीगेट डिमांड हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वन इज अनदर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है. दो कंपोनेंट्स शामिल हैं यहाँ पे. यहाँ सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की डिमांड की बात नहीं की गई है बल्कि प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड की भी बात की गई है, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से आपको पता चल रहा है. नाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगेन हैज टू कंपोनेंट्स, दैट इज साइज ऑफ इनकम, दैट इज साइज ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट. नाउ साइज ऑफ इनकम हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, दैट इज कंजम्पशन एंड साइज ऑफ इनकम में, दोनों में. कंजम्पशन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स, दैट इज साइज ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. साइज ऑफ नेशनल इनकम और कंजम्पशन में यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन है, दैट मीन्स एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ इनकम फॉल्स कंजम्पशन ऑल्सो फॉल्स, राइट. दूसरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स द परसेंटेज ऑफ इनकम दैट इज स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स, ठीक है. तरह के होते हैं, एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो, एक दूसरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है. ये हम लोग अभी देखेंगे इसको डिटेल में. देन इन्वेस्टमेंट फंक्शन अगेन डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है. आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगेन डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स, दैट इज सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम कैपिटल. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सप्लाई फॉर मनी एंड डिमांड ऑफ मनी पे डिपेंड करता है,
राइट, सप्लाई ऑफ मनी क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, इट विल बी मोर और लेस अगेन रिमेन कांस्टेंट. Demand for money according to Keynes is done for the liquidity preference, cash holding जो लोग अपने पास liquid form में रखना चाहते हैं due to these three purposes. What are these three purposes? That is transaction motive के लिए, precautionary motive के लिए और speculative motive के लिए, right? So this whole flow chart will tell you in brief the Keynesian theory of employment. And so इसका थियरी में बताया है दैट राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय का डिसाइड होता है वेयर इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पर डिपेंडेंट है, राइट. और एम्प्लॉयमेंट अगेन इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंडेंट है. इफेक्टिव डिमांड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वालिटी पे डिपेंड करता है. नाउ बिकॉज देयर इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्रीगेट सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. सो इसीलिए इसको हम राष्ट्रीय आय भी बोल रहे हैं. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द नेशनल इनकम, राइट, क्योंकि शॉर्ट रन है. सो एग्रीगेट सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट. सो एग्रीगेट डिमांड पे आते हैं. इट हैज टू कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, राइट, क्योंकि लोग डिमांड करेंगे तो किसी के लिए इनकम जनरेट करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे तो दूसरे के लिए भी इनकम बनेगा, तो वो भी कंजम्पशन करेंगे, वो भी कंजम्पशन करेंगे, फिर किसी और के लिए इनकम है. सो ऐसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से, राइट. सो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड साइज ऑफ नेशनल इनकम पे डिपेंड करता है. ना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैंने बताया दैट ये दो तरह के होते हैं. एक तो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट. नाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, राइट, रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. सपोज मेरी इनकम है 10,000 रुपीज और मैं 10,000 में से 7,000 अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए खर्च करती हूँ, मतलब महीने में मैं 7,000 खर्च कर देती हूँ. तो मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी 7,000 डिवाइडेड बाय 10,000 विल बी 0.7. सो मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 0.7, राइट, और 70%. दैट मीन्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको बताता है कि कितना परसेंटेज भाग ऑफ आपका इनकम आप खर्च कर रहे हैं कंजम्पशन पे, ठीक है. दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये होता है. ये तो हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वेयर इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन. डेल्टा सिंबलाइजेस द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. आय में परिवर्तन की वजह से कंजम्पशन में कितना परिवर्तन हुआ. अब आपकी इनकम सपोज 10,000 से बढ़ के 20,000 हो जाती है. सो change in income will be 10,000, right. 20,000 minus 10,000 will be 10,000. Change in consumption will be suppose 7,000 था पहले मेरा consumption, अब वो बढ़ के 14,000 हो गया, right. तो that means मेरे consumption और change in consumption और change in income उतना, मतलब 0.7 ही है, मतलब APC भी उतना ही है, MPC भी उतना ही है. There is no change, right. सो दैट मीन्स मतलब कि मैंने पहले भी जितना कंजम्पशन कर रही थी, परसेंटेज ऑफ इनकम खर्च कर रही थी, अभी भी मैं 70% ही खर्च कर रही हूँ. देयर इज नो चेंज इन दैट. मेरा इनकम बढ़ने पे भी परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन बढ़ा नहीं, वो उतना ही रहा है, राइट. सो दैट इज हाउ वी डिवाइज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देन साइज ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा जो कॉम्पोनेंट कंजम्पशन जिस पे डिपेंडेंट है इज साइज ऑफ नेशनल इनकम. क्योंकि हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, सो नेशनल इनकम अगेन डिपेंडेंट अपॉन वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स, and it also depends upon the state of technology, which again during the short period it will remain constant. And दूसरा factor is stock of capital, which also remains constant in the short period. So size of national income will remain more or less constant in a short period, right. सो कंजम्पशन में ये एक तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ये दोनों को जो डिटरमिन करने वाले हैं, ये डिपेंड करेगा ना आपके टेस्ट हैबिट्स, है ना, आपका रिवाज, कल्चर,
एंड सो मेनी अदर थिंग्स, राइट. सो वो सारी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पे जो डिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें, जो कि शॉर्ट पीरियड में मोर और लेस कांस्टेंट रहती हैं, तो उसकी वजह से इनकम बढ़ने या घटने पे भी कंजम्पशन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है. सो राइट, सो वी हैव टू increase the level of aggregate demand, we have to depend upon the investment expenditure now, क्योंकि दोनों कंपोनेंट आते हैं एग्रीगेट डिमांड में, सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं आता, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है. सो कीन्स के अकॉर्डिंग अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के आप एग्रीगेट डिमांड के लेवल को बढ़ा सकते हैं, राइट. नाउ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि जिससे कि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स में जिससे वृद्धि हो रही है, राइट. इट इज द एक्सपेंडिचर which will lead to addition in the total stock of capital assets, right. और इसमें अगेन ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, राइट. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट को कौन सी चीजें डिटर्मिन करती हैं? अब कीन्स ने कहा इट इज प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमिनन. रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन जो है मॉनेटरी फिनोमिनन है और मौद्रिक बाजार में ये तय होता है विद द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, राइट. अब कीन्स के अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी है दैट इज डन फॉर कीपिंग द assets in a liquid form, right. That is also known as liquidity preference by the Keynes. Liquidity preference theory of interest, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो थियोरी है वो कीन्स ने दी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी. सो उसके लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब कि लोग अपने पास कैश होल्डिंग, अपने पास लिक्विड फॉर्म में जो कैश होल्डिंग रखना चाहते हैं, राइट. दैट इज डन फॉर 3 पर्पसेस मेनली: ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस एंड स्पेक्युलेटिव, राइट. नाउ ट्रांजैक्शन मतलब कि डेली दिनचर्या के लिए आपके दूध लाना है, ब्रेड लाना है, नमक लाना है, दाल चावल लाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए आप अपने पास कैश होल्डिंग रखना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव, आप सोच रहे हैं कि कल को कहीं मेरी जॉब चली जाए या कल इस बार मेरी फसल नष्ट हो जाए, या सोच रहे हैं कि कल को कहीं मेरे को कोई बीमारी हो जाए, या सोच रहे हैं कि कल मेरे फैमिली में किसी को कुछ हो जाए या एक्सीडेंट, वट एवर थिंग, कि इसके लिए आप पहले से ही बचत करके रख, मतलब अपने पास कैश होल्डिंग रखते हो कि अचानक से मेरे को कैश की जरूरत पड़ेगी और मुझे खर्च करना होगा, राइट. सो उस टाइम पीरियड के लिए आप जो बचा के रखते हो दैट इज दी प्रिकॉशनरी मोटिव, राइट. लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव. ये दोनों फैक्टर्स डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ इनकम. कितनी आपकी आय का स्तर है उस पर आप उतना ही, इन दोनों पर्पसेस के लिए उतने ही पैसे आप बचाओगे. ज़्यादा है इनकम, लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा है, सो ज़्यादा बचाओगे. लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी बहुत कम है तो ये दोनों मोटिव बाद में आएगा. पहले आप अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो आज के दिन का मेरे को दाल रोटी मिल जाए, वो पहले खर्च करेंगे उस पर, उसके बाद कुछ बचा तभी तो आप सेव करेंगे, राइट. सो ये ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव प्योरली is dependent upon income, right. These two are the function of income, right. Then comes the speculative motive. ये जो तीसरा मोटिव है ये किया जाता है आपके पास जो कैश होल्डिंग है उसके द्वारा आप उस पर प्रॉफिट अर्न करो, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करो या रेट ऑफ रिटर्न जो होती है कैपिटल की वो अर्न करो. इसके लिए आप अपने पास कैश होल्डिंग रखते हैं, राइट. उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सपोज. और मैंने बताया बॉन्ड प्राइसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होते हैं, दोनों ही इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. बॉन्ड प्राइस जब सस्ती होगी तो आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है, और बॉन्ड प्राइस महंगी होगी तो आप क्या करेंगे, दैट मीन्स सस्ती होगी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, आप अपने जो स्पेकुलेटिव मोटिव का के लिए जो पैसे रखे हैं वो कम कर दोगे, राइट. अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है, दैट मीन्स बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाती हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है, तो आप क्या करेंगे, अपने पास जो स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप अपने पास कैश होल्डिंग, अपनी कैश लिक्विड फॉर्म में इसको होल्ड करना प्रेफर करेंगे, तो स्पेक्युलेटिव मोटिव डिमांड फॉर मनी उस टाइम पे बढ़ जाती है. सो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है आपका डिमांड फॉर कैश और कैश होल्डिंग और लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोल लीजिए, राइट. अब सप्लाई ऑफ मनी प्योरली अगेन इट इज डन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी. सो इस करके जो सप्लाई ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया है. सो दोनों जहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे ये दो कर्व्स, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित
हो जाएगा, ब्याज दर निर्धारित हो जाएगा डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज अ मॉनेटरी फिनोमेनन एज स्टेटेड बाय द केन्जियंस और कीन्स. देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दूसरा वो फैक्टर जिसपे कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है. Now marginal efficiency of capital again depends upon these two things, that is supply price of capital asset and prospective yield, right. अब जो एंटरप्रेन्योर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में क्या करेगा, कंपेयर करेगा. अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, निवेश बढ़ेगा. अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा या कम हो जाएगा, राइट. सो जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपके रेट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को बताती है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम दैट कैपिटल को बताती है. तो कैपिटल की कीमत ज्यादा होगी, दैट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. तो आप निवेश कम कर देंगे, राइट. बट अगर आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप निवेश ज्यादा करना प्रेफर करेंगे इन दैट केस, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है आपको, इसलिए, राइट. सो शॉर्ट पीरियड में अगर आपको निवेश करना है तो इट कैन बी डन बाय लोअरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो एग्रीगेट डिमांड एज ए होल को बढ़ाने के लिए, तो ये जैसे कि मैंने बताया दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों पे. बट शॉर्ट पीरियड में क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंजेस नहीं होते हैं ज़्यादा, ड्यू टू इट्स डिपेंडेंस अपॉन दी वेरियस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स. बट इन्वेस्टमेंट को इसीलिए हम लोग एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं. तो उससे एग्रीगेट डिमांड जब एज ए होल बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग खत्म कर सकते हैं इस तरह से, राइट. सो एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन कैसे होगा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन. एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे, राइट. और ये कहाँ होगा, दैट मीन्स जहाँ पे इफेक्टिव डिमांड होता है, राइट. सो यहाँ देखते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस टेबल में. अब आप देखिए, देयर आर इनिशियली जब 0 लोगों को एम्प्लॉय किया गया था तो एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग नेशनल इनकम भी मानते हैं. सो इनकम लेवल वाज 0, राइट, क्योंकि लोगों को रोजगार ही नहीं मिला था, तो आउटपुट इनकम भी 0 है. बट देयर इज एग्रीगेट डिमांड. अब लोगों को अपना पेट तो पालना है, राइट, अपने रोटी कपड़ा तो चाहिए, राइट. सो उसके लिए वो तो चाहे बेरोजगार होंगे तब भी डिमांड तो करेंगे, चाहे चोरी करके करेंगे चाहे मांग के करेंगे, है ना. तो ये लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई. क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हो रही है, लोग निवेश करेंगे, बनाएंगे. इस एग्रीगेट डिमांड में जो आउटपुट की डिमांड हो रही है इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट, उसका उत्पादन करेंगे. सो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट. अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी एग्रीगेट सप्लाई से, तो रोजगार मिला. सपोज 10 लाख लोगों को रोजगार मिल गया, इससे एग्रीगेट सप्लाई हो गया. अब जो ये 10 लाख लोगों के पास जब इनकम आई, इन्होंने और डिमांड बढ़ा दी, और डिमांड बढ़ के अब 60 से 100 करोड़ हो गया, राइट. अब अगेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, और 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया. अब 20 लाख लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं. अब उनकी एग्रीगेट सप्लाई होगी है 90 करोड़, राइट. बट आपका एग्रीगेट डिमांड और बढ़ गया, क्योंकि अब ये 10 लाख एक्स्ट्रा लोगों के पास और इनकम आ गई ना, तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ के अब 100 से 120 हो गया, राइट. तो क्योंकि अगर भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, और लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ के 120 होगी जितनी एग्रीगेट डिमांड हो रही थी. बट अगेन नाउ ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ 10 लाख पीपल, राइट, जिनके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इनका डिमांड अगेन बढ़ के 140 करोड़ हो गया. फिर भी दोनों में गैप दिख रहे हैं आप, जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई. सो 10 लाख और लोगों को रोजगार दिया गया, जिससे कि आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ के 150 हो गया, राइट. अब 150 हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस. हु इज दिस? बंद करो इसको, ऑल राइट.
140 से एग्रीगेट डिमांड जो 140 था उसके मुकाबले एग्रीगेट सप्लाई तो बढ़ गया, but still due to this addition of 10 lakh more people who got employed and who have now the purchasing power, so that is the reason अभी भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है as compared to एग्रीगेट सप्लाई, so employment और बढ़ेगा। नाउ 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, 10 लाख और लोगों को मतलब दिया गया, सो उससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ के आपकी 180 हो गई, राइट। और अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड भी बराबर होगी, 180 ही होगी इस बार, जितनी सप्लाई हुई उतनी ही डिमांड भी होगी। सो दिस इज द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम विल बी ड्रॉन, दैट मीन्स where there is the equality between aggregate demand and aggregate supply at this level of employment. So that is the point of effective demand, that is where effective demand will be realized, right? Now अभी और भी लोग हैं अनएम्प्लॉयड, 70 लाख लोग थे टोटल जो एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते थे, जिनमें से कि 50 को मिल गया, बट 20 लाख अभी और लोग हैं। बट अगर इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है ड्यू टू द डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आपकी जो उत्पादन जो है वो बढ़ के 210 हुई है, बट आपका एग्रीगेट डिमांड उतना नहीं बढ़ा। अब लोगों ने सेविंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया, सो अब वो लोग डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो अब एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से एग्रीगेट एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट घटना शुरू हो जाएगा। अगर इनको भी और लोगों को फिर भी दिया आपने एम्प्लॉयमेंट, फिर भी यहाँ पे डिफरेंस अब बढ़ता ही जा रहा है दोनों में, अब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होते जा रहा है और डिमांड कम होती जा रहा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट घटना शुरू हो जाएगा इस वजह से, राइट। ऑल राइट, सो इफेक्टिव डिमांड कर्व को हम लोग इस एग्रीगेट डिमांड, ये इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं यहाँ पे। सपोज दिस इज द 80 lakh people and is the 80 lakh people, sorry 50 lakh people who got employed, right? And where aggregate demand and aggregate supply, aggregate demand का कर्व आप देख रहे होंगे OY एक्सिस के ही से ही Y एक्सिस पे किसी पॉइंट से एक पॉइंट से शुरू हो रहा है, जबकि यहाँ से ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोगों की इनकम जीरो भी होगी तब भी वो डिमांड करेंगे, राइट। एम्प्लॉयमेंट जीरो होगा तब भी वो डिमांड करेंगे, वो अपने अपने डे टू डे लाइफ के लिए, अपने पेट पालने के लिए वो लोग खर्च करेंगे कहीं ना कहीं से, राइट। चाहे मांग के या किसी और मीन्स अपना के वो लोग ये खर्च करेंगे, राइट। इतना डिमांड उनका रहेगा, राइट। सो दैट इज द रीजन वो ओरिजिन से शुरू नहीं होता है एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन का कर्व कभी भी, ओवर एक्सेस से कहीं से किसी पॉइंट से शुरू वो होता है, राइट। एंड आप लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि हमने ऑन ओ एक्स एक्सेस लिया है और यहाँ पे हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को लिया है ऑन द ओ वाई एक्सेस, या रिसिप्ट्स भी बोल सकते हैं या इनकम भी बोल सकते हैं। सो वो हमने ओ वाई एक्सेस पे लिया हुआ है। सो एग्रीगेट डिमांड का कर्व ये है, और एग्रीगेट सप्लाई बिफोर एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा फ्रॉम N1 टू N। जब वो N पे गया दैट मीन्स जहाँ पे 50 लाख लोग एम्प्लॉयड थे वहाँ पे दोनों का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। सो दिस E इज द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, राइट। इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहाँ है, यहाँ जहाँ पे 70 लाख लोग हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 70 लाख लोग थे, तो यहाँ से यहाँ जो गैप है 20 लाख लोगों का वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं, आप देख रहे हैं, राइट। और फुल एम्प्लॉयमेंट अगर अचीव कर लेते हैं उसके बाद तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व क्या हो जाता है, पैरेलल टू द ओवर एक्सिस, ऐसे हो जाता है। मतलब कि पूर्ण रोजगार के बाद तो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को आप और बढ़ा दो तो अब भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा या नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। इट विल ओनली लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस आफ्टर दैट, राइट, बिकॉज क्योंकि हम लोग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कर ली, मतलब रिसोर्सेज सारे एम्प्लॉयड हो गए, तो अब उत्पादन में वृद्धि होगी नहीं इसके बाद, राइट। सो दैट इज द रीजन अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ के बाद और बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं होना, सिर्फ इनकम भी नहीं बढ़ेगा, आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ प्राइसेस को एस्केलेट करेगा या प्राइसेस पे इफेक्ट करेगा, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे उस पॉइंट के बाद। सो अभी इफेक्टिव डिमांड कहाँ है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के कर्व्स एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे हैं, इक्वल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे एक दूसरे के बराबर है, राइट। सो इतना बेरोजगारी अभी भी पाया जा रहा है। देन फुल एम्प्लॉयमेंट को पाया कैसे जा सकता है, अब हमने देखा जो ये पहले पिछले कर्व में ई जो था, ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं। सो ये इक्विलिब्रियम जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट देखा।
अब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंक्रीज द इफेक्टिव डिमांड, राइट, सॉरी एग्रीगेट डिमांड, राइट। सो इस एग्रीगेट डिमांड को हम बढ़ा देते हैं बाय इंक्रीजिंग मोर, बाय डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट, राइट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करके हम लोग ये एग्रीगेट डिमांड का ऊपर को खिसक जाता है और नया इक्विलिब्रियम इस E1 पे एस्टैब्लिश हुआ, जहां पे LF आपके फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को दिखा रहा है, राइट। सो पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। और एग्रीगेट डिमांड में भी क्योंकि कंजम्पशन मोर और लेस कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, सो हमको उसको बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाना होगा। और वो निवेश प्राइवेट इन्वेस्टर तो करेंगे नहीं डिप्रेशन या रिसेशन जैसे दौर में, तो वो निवेश किसके द्वारा किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू कीन्स दैट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट करेगी, वो गवर्नमेंट एज एन एजेंसी, वो गवर्नमेंट उसमें लोगों को निवेश कर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करेगी, राइट, स्वचालित निवेश जिसको बोलते हैं। वो निवेश करने से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, और वो डिमांड बढ़ने से आपका नेचुरली फिर एम्प्लॉयमेंट को भी हम अचीव, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को अचीव कर पाएंगे, राइट। सो ये था कीन्स का कैसे इनकम, नेशनल इनकम और आउटपुट तय होता है अकॉर्डिंग टू कीन्सियन थ्योरी। नाउ इसके मॉडल में, कीन्स के जो जनरल थ्योरी के मॉडल में, इनकम हैज टू कंपोनेंट्स, दैट इज एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको, जो नेशनल इनकम, again aggregate supply or income is the same thing, right? So it has two components, consumption plus investment expenditure, right? Now consumption has two things now, right? consumption में एक तो होता है autonomous consumption, वो जो गैप रहता है ना, see this gap, right? so ये जो है ना consumption, that is autonomous consumption, मतलब कि जो चाहे इनकम जीरो हो तब भी होना ही होना है, मतलब जो कि आय पे डिपेंडेंट नहीं है, right? So that is the autonomous consumption. The C0 is telling you the autonomous consumption, plus BY is telling you the consumption that is happening due to changes in income. आय में बढ़ने की वजह से जो consumption बढ़ता है या आय घटने से जो consumption घटता है, so that is this consumption. तो यहाँ पे consumption के दो components देख रहे हैं आप, autonomous consumption एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दो कंजम्पशंस हैं, दो तरह के कंजम्पशन होते हैं, एक जो आय पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरा जो आय पे डिपेंडेंट, राइट। यहाँ पे आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोल सकते हैं इसको, है ना। एंड क्योंकि इसमें इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में डाल दें तो इट विल बी C0 प्लस BY प्लस I, राइट। सो Y इज इनकम, C इज कंजम्पशन, C0 इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, B इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैंने बताया ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दैट मीन्स जो इनकम में परिवर्तन की वजह से कंजम्पशन में परिवर्तन आ रहा है उसको बता रहा है, सो इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाई यहाँ पे क्या है, इनकम इन इनिशियल स्टेज है, राइट, एंड आई इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, राइट। सो यहाँ आप देखिए ये जो आपका कीन्स ने भी बताया कि इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे कि क्लासिकल्स ने बोला था, राइट। सो ये जो पहला इनिशियल इक्विलिब्रियम हो रहा है एट दिस y0 लेवल ऑफ, यहाँ पे इनकम और आउटपुट लिया गया है ऑन OY एक्सिस ऑन बोथ द डायग्राम्स, ठीक है, दोनों ही डायग्राम्स में A और B पैनल जो है, A पैनल में भी इनकम एंड आउटपुट ही है OY एक्सिस पे, OX एक्सिस पे, और यहाँ पे भी इनकम एंड आउटपुट ही है। यहाँ पे आपका इस B पैनल में इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को लिया गया है ऑन OY एक्सिस, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को लिया गया है, ठीक है, जिसमें कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ आ जाता है, राइट। ऑल राइट, सॉरी एग्रीगेट डिमांड में आपके कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आता है, राइट। ऑल राइट, आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, अब आप ये सेविंग का कर्व सोच रहे होंगे ये ओरिजिन से नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इनिशियली ये जो कंजम्पशन का गैप आप देख रहे हैं ना, ये जीरो इनकम पे भी कंजम्पशन हो रही है, दैट मीन्स लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग नेगेटिव होगी ना लोगों की, सो दैट इज द रीजन वो नेगेटिव जोन से शुरू होता है सेविंग आपका, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन लोगों की हो रही है, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस नेगेटिव सेविंग, राइट। सो जैसे जैसे ये गैप कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का भी गैप कम हो रहा है, राइट, सॉरी ये सेविंग का भी गैप कम हो रहा है विद द OX एक्सिस, देन इट रीचेस हियर एट दिस इक्विलिब्रियम जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर। इन्वेस्टमेंट कर्व आप सोच रहे होंगे ये इन्वेस्टमेंट का कर्व ऐसा क्यों है, क्योंकि
ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, जो कि किस पे डिपेंडेंट नहीं है, सेविंग आपके गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि इनकम से जिसका कोई लेना देना नहीं है या प्रॉफिट मोटिवेटेड नहीं होता है। सो इसीलिए ये पैरेलल टू द OX एक्सेस है, मतलब लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये पैरेलल टू द, सो इतना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पहले हो रहा था, राइट। सो दिस इज वेयर इक्विलिब्रियम इज हैपनिंग एट दिस Y0 लेवल ऑफ इनकम। और यहाँ पे भी वही सेम चीज, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, राइट, एंड ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व, इनिशियल एग्रीगेट डिमांड का कर्व, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। सो इक्विलिब्रियम इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट एंड सिमिलरली एट दिस Y0 यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का भी इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है। नाउ क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुआ, तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, राइट। तो ये आ गया आई प्लस चेंज इन आई, डेल्टा आई आपके चेंज इन इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है। सो आपका ये इन्वेस्टमेंट का कर्व जितना बड़ा उतना ही आपका यहाँ पे ये पैरेलल इतना ही सेम गैप से आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी बड़ा है, विच इज रिप्रेजेंटिंग नाउ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है। एंड नाउ द इक्विलिब्रियम इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व, राइट। एंड इस इक्विलिब्रियम पे आप देख रहे हैं Y1 लेवल ऑफ इनकम जो है बढ़ गया है, फ्रॉम Y0 टू Y1 बढ़ा है, और यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर, राइट। सो दिस इज हाउ इनकम एंड आउटपुट इज डिटर्मिन्ड according to Keynesian theory by increasing the level of aggregate demand or by doing autonomous investment। हम लोग नेशनल इनकम का लेवल और नेशनल आउटपुट का लेवल को बढ़ा सकते हैं, राइट।